عیدگاہ کے دن واجہ گاؤں عیدگاہ کے قریب پیش آئے موٹر سائیکل دھماکہ معاملے نے شہر بھر میں تشویش کی فضا قائم کر دی ہے۔ اس حساس معاملے میں پولیس کی جانب سے جاری تفتیش کی حقیقی صورتحال جاننے کے لیے آج مسلم سماجی و سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران پر مشتمل ایک نمائندہ وفد نے ضلع ایس پی ابھیناش کمار سے پولیس ہیڈ کوارٹر میں اہم ملاقات کی۔ وفد میں سینئر خانندہ ایڈوکیٹ MZ صدیقی، مجلس کے سابق ریاستی صدر سید معین، مراٹھواڑہ صدر فیروز خان لالا، NCP کے ریاستی نائب صدر محمد خان پٹھان، کارپوریٹر محمد صابر چاوش، عبدالحبیب باغوان، عبدالحبیب باوزیر، مسلم ایڈوکیٹ فورم کے صدر ایڈوکیٹ ایوب الدین جاگیردار، سید فصیح الدین، رحیم احمد خان، شمیم عبداللہ، شفیع احمد قریشی، واجہ گاؤں کے سرپنچ جمیل شیخ، مرزا امجد بیگ، سابق DYSP عبدالرزاق، SDPI کے محمد اعجاز سمیت دیگر معزز افراد شامل تھے۔ میٹنگ کے دوران وفد کے اراکین نے واضح طور پر کہا کہ یہ دھماکہ کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں بلکہ ایک منظم اور سوچی سمجھی دہشت گردانہ سازش معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکے میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے جسم اور موٹر سائیکل میں دھماکہ خیز مواد نصب تھا، جس کے باعث آگ لگنے کے بعد مسلسل 6 سے 7 دھماکے ہوئے۔ اگر ملزم اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جاتا اور عید کے موقع پر مجموعے میں دھماکہ کر دیتا تو بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ تھا۔ وفد نے مطالبہ کیا کہ اس پورے معاملے کی اعلیٰ سطحی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے اور اس میں ملوث دیگر افراد کو بھی بے نقاب کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر مسلم رہنماؤں نے ناندیڑ کے پاٹ بندھارے نگر میں 6 اپریل 2006 کو پیش آئے بم دھماکہ کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بھی ایسے ہی معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں بعد میں عدالت میں ملزمین کو ثبوتوں کے کمی کے باعث بری کر دیا گیا۔ انہوں نے زور دیا کہ اس بار ایسا نہ ہو اور مکمل شفافیت کے ساتھ تفتیش کی جائے۔ ضلع ایس پی ابھیناش کمار نے وفد کے تمام نکات کو غور سے سنتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ پولیس انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہر پہلو کی جانچ کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم کی شناخت ہو چکی ہے اور اس کے رابطوں کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم کا تعلق پربھنی سے ہے اور اس کی ذہنی حالت بھی مشکوک بتائی جا رہی ہے، تاہم وہ ناندیڑ کیسے پہنچا اور کس نے اس کی مدد کی، ان تمام پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ٹھوس شواہد سامنے آئیں گے پورے معاملے کو میڈیا کے ذریعے واضح کیا جائے گا اور کسی بھی ملزم کو بخشا نہیں جائے گا۔ ایس پی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور کسی بھی قسم کی افواہوں پر یقین نہ کرے۔ بعد ازاں وفد نے ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے سے بھی ملاقات کر کے ایک یادداشت پیش کی اور یہی مطالبہ دہرایا کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنایا جائے۔ کلکٹر نے بھی وفد کو یقین دلایا کہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے پر نظر رکھیں گے اور بغیر کسی دباؤ کے شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جائے گا۔ شہر میں اس واقعے کو لے کر بے چینی برقرار ہے اور عوام کی نظریں اب پولیس کی تفتیش اور اس کے نتائج پر مرکوز ہے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ کے ساتھ آل پارٹیز میٹنگ ہوئی، کیا کچھ واجہ گاؤں کو لے کر باتیں چرچا میں کس طرح کی مانگ کی؟ آج ناندیڑ کے تمام مسلم تنظیمیں، سیاسی اور غیر سیاسی، اس سب پر منحصر ایک جو ہے وقت ہے جناب SP صاحب سے ملا اور ہماری وجہ یہ تھی کہ 21 مارچ 2026 کو 9:30 اور 10 کے درمیان میں واجہ گاؤں کے عیدگاہ کے نیچے جو واقعہ ہوا سیلف بمباری کا، اس سلسلے میں ہم نے ان سے ایک میمورنڈم دیا۔ اس میں ہم نے ان سے ڈیمانڈ یہ کی کہ جس طریقے سے اس سے پہلے پاٹ بندھارے کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی تھی وہ تحقیقات اس میں نہ ہوں بلکہ یہ صحیح تحقیقات ہوں اور یہ جو ہے سادہ سیدھا ہمارے 2 چاکے گرنے کا، موٹر سائیکل جلنے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے کو جو معلوم ہوا اور ہم نے دیکھے ہیں اور کچھ ہمارے لوگوں نے دیکھے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک ہندو فرقہ وارانہ جو جماعتیں ہیں ان کی ایک سازش ہے اور خدا کے فضل سے یہ ہوا کہ سازش ان کے ناکام ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اس واقعے کے پیچھے، اس جو ہے حادثے کے پیچھے پربھنی سے جو آدمی آیا ہے وہ پربھنی سے یہاں کیوں آیا اور پربھنی سے یہاں آنے کے بعد یہاں کے مقامی کون سی پارٹیاں جو ہمارے فرقہ پرست ہیں ان کے بھی جو ہے چوکسی کی جائے اور پربھنی میں جو یہ آدمی نے جو یہاں سے آ کے وہاں سے کیا ہے اس کے بارے میں کی جائے۔ بہرحال اس طریقے سے ہم نے تمام مسلمانوں کے جانب سے ہم نے یہ کہا کہ کسی بھی حالت سے
मुलजिमीन की गिरफ्तारी हो, उन्हें सजाएं हो, और उन्हें मामूली बात पर भी जो है आपको अगर शहादत की ज़रूरत पड़ी तो हम उस शहादत देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास आई विटनेसेस हैं। बहरहाल हमारे मेमोरेंडम पर जनाब एसपी साहब ने पढ़ा, गौर किया, और उन्होंने कहा कि हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं हम इंशाअल्लाह जो है इंसाफ दिलाएंगे, और हम हर एंगल पर कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन हुए हैं, और इसमें हम दीगर एजेंसीज़ को ATI, CID, ATS वगैरह को भी साथ रखे हैं। बहरहाल फ़िलहाल तो हम उनसे यही कहें कि जैसे जैसे भी आपके पास जो है इस बारे में चौकसी होगी उसकी इत्तला अवाम को दी जाए। उन्होंने इससे जो वायदा किया है कि इंशाअल्लाह हमारे पास जो भी चौकसी होंगी, जो भी इसमें होंगी, हम उसकी इत्तला किसी न किसी तरीके से आवाम तक पहुंचाएंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो हमको ऐसा महसूस होता है कि कल हमारे एसपी साहब का जो रुख है वो ठीक है। अब आगे क्या होता पता नहीं। खुदा हाफ़िज़। देखो, वाजेगांव की अवाम की तरफ से और पूरे नांदेड़ के अंदर और पूरे मराठवाड़ा में एक तशवीश और एक बेइत्मीनानी का माहौल था, और सभी लोगों का ये कहना था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस राह पर चल रही है, किस तरीके पर चल रही है। जो वाकया वाजेगांव के अंदर ईद के दिन ईदगाह के करीब ईद की नमाज के वक्त में जो रोनुमा हुआ, वो वाकया साफ तौर से सभी ने उस वाक़े को देखा, और वाकया बता रहा है कि मरने वाला किस इंटेंशन से वहाँ पर आया था, उस जगह को ही उसने क्यों चुना, और उसके बॉडी से जिस तरीके के ब्लास्ट या पटाखों की आवाज़ें आ रही थी, और पेट्रोल की बाटल है, सुतली बम है, ये तमाम चीज़ें क्या दर्शा रहे हैं। तो ऑल पार्टीज़ की तरफ से, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस पार्टी, NCP, समाजवादी और तमाम संगठनों के लोग शामिल हैं, आज ये डेलीगेशन एक शिष्टमंडल पुलिस इंतज़ामिया की तरफ, SP साहब के पास आए, और तमाम का ये मुतालबा था कि इससे पहले नांदेड़ के पाट बंधारे के अंदर एक वाक़या रोनुमा हुआ और उसको छुपाया गया, उसको ख़त्म किया गया। अगर सही इन्वेस्टिगेशन होती वो आरोपी नहीं छूटते। तो हम सब की तरफ से यही मुतालबा था कि पुलिस की सही तहकीकात हो, आरोपी की शनाख्त हो चुकी है, उसके पीछे कौन कौन है, कौन सी संगठन के लोग हैं, उसका इरादा क्या था, वो क्या करने के लिए आया था, और इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल लेकर अपनी बॉडी को बांध कर वहां पर आना और उसी जगह को चुनना, ये तो खुली आंखों से सबने देखा। तो सब लोगों के अंदर एक हैरत है और बेइत्मीनानी है, और उसी बेइत्मीनानी को हम लोग लेकर आए थे SP के पास में। SP ऑफिस आए और सभी की तरफ से हमने बात की, और हमने कहा कि इसके अंदर ATS को इन्वॉल्व करना चाहिए, NI को इन्वॉल्व करना चाहिए, और इसकी जड़ों तक पहुंचना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं इसके अंदर शामिल। खुदा ना खास्ता, हजार बार खुदा ना खास्ता अगर ये वाकया ईदगाह के ऊपर हो जाता, तो आज क्या जिस सिचुएशन में आप और हम ठहरे हुए हैं कि नांदेड़ में इतनी इत्मीनान के साथ हम लोग ठहर सकते, पूरा बेइत्मीनानी का माहौल हो जाता, सिलक जाता नांदेड़। तो हमारा यही मुतालबा है कि पुलिस की DSB या पुलिस की तरफ से जो उनका एक खास तौर से एक महकमा है जो तमाम चीजों पर निगरानी रखता है, वो क्या कर रही है। पुलिस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है यहाँ पर, आप गौर करिए। तो हम यही कहने के लिए आए हैं कि इसके अंदर ATS को, NI को इन्वॉल्व करिए, और जो आरोपियों को, जो आरोपी या उसका बैकग्राउंड या उसके संगठन है, जो भी लोग हैं इसके अंदर, इसमें UAPA मकोका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और इसकी जड़ों तक पहुंचकर उन लोगों को उठाना चाहिए, और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसा आम तौर पे देखा जाता है कि एक फिरके को अलग नजरिए से देखा जाता है, दूसरे फिरके को, दूसरे समाज को अलग नजरिए से देखने का काम किया जाता है। वैसा ना हो, बल्कि हमको SP साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो ऑल पार्टीज की तरफ से डेलीगेशन आया है, ये हम खामोश तो नहीं बैठने वाले हैं, हम देखेंगे, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे हम।
क्योंकि ये पूरे शहर के माहौल को खराब करने का एक षड्यंत्र था। सोचने की बात है, आप भी गौर करिए, उसी जगह को उसी दिन को क्यों चुना गया? आने वाले 4-5 दिन के बाद रामनवमी भी है। क्या उस शख्स का हालात खराब करने का इरादा था? शहर का माहौल खराब करने का इरादा था? क्या था? तो तमाम चीजों के लिए हम यहाँ पर आकर एसपी साहब से हमने मुतालबा किया। अभी तक क्या जी बाजू में खड़े आप मीटिंग में थे, ओवरऑल मीटिंग का जो बातें रही, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मसले पर कोई खास? आज नांदेड़ शहर और पूरे ज़िले की तरफ से और मुसलमान नांदेड़ ज़िले की तरफ से तमाम पार्टीज़ के उलमा और तमाम लीडरान एसपी साहब से खुसूसी मुलाकात किए और इस ज़िमन में जिस दिन ईद उल फितर के दिन और जो ईदगाह वाजेगांव के पास में जो हादसा नुमाया हुआ है उसके बारे में सखोल चौकसी करने के लिए और सखोल चौकसी करके इसको एटीएस के ज़रिए से एटीएस को इन्वॉल्व करके इसका रिज़ल्ट नुमाया सामने आए ताकि आने वाले दिनों में नांदेड़ की जो गंगा जमुना की तहसीब है वो उसमें कोई खलल पैदा ना हो। आज तक के इसके पहले भी जब पाटबंधारे नगर में जो हादसा हुआ उस ताल्लुक से भी अगर सखोल चौकसी अगर होती तो आज ये हादसा नुमाया नहीं होता था। तो लिहाजा हमने एसपी साहब ने बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन किया और हमको बताया कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे और वहाँ के जो कंसर्न लोग हैं वाजेगांव के उनके भी हम बयानात लेंगे और बयानात लेकर इसको हम सखोल चौकसी करके नुमाया रिजल्ट आपके सामने लाकर देंगे। तालीमी मैदान में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाला इदारा शाहीन एकेडमी नांदेड़ सिर्फ 5 सालों में 300 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल और 200 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग के मुमताज़ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है। शाहीन एकेडमी में तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद स्मार्ट एसी क्लासरूम्स, 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए नीट और JEE की क्लासेस, दरसी तालीम के साथ साथ मुनज़्ज़म वीकली टेस्ट सीरीज के जरिए तलबा को नीट और JEE की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। 8वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए शाहीन फाउंडेशन क्लासेस, जहां मजबूत तालीमी बुनियाद तैयार की जाती है। तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल में मुक़ीम तलबा के लिए ताम के बेहतरीन इंतजामात, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मोबाइल फ्री स्टडी माहौल फराहम किया गया है। पर्दे की पाबंदी के साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरेंस पर भी खुसूसी तवज्जो। मुकामी तलबा के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम। यहाँ असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में रोज़ाना 5 वक्त नमाज बाजमात का भी खुसूसी अहतमाम। तलबा में दीनी शऊर की बेदारी के लिए हर जुमा को उलमा इकराम के खुसूसी बयानात। इसी तरह रमज़ान अल मुबारक में इज्तिमाई तौर पर सहर व इफ्तार का भी किया जाता है नज़्म। हर साल शाहीन एकेडमी के तलबा SSC, HSC, नीट, JEE, ओलंपियाड और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें या फिर विजिट करें शाहीन एकेडमी कैंपस, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।